آپ کو خبر دیں کہ جوڈیشل مجسٹریٹ ملیر نے اے آر وائی کے نیوز ہیڈ عماد یوسف کو بری کر دیا۔ 1 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرا دیے گئے۔ عماد یوسف نے رہائی کے بعد فتح کا نشان بنایا۔ الزام ثابت نہ ہو سکے، اے آر وائی کے نیوز ہیڈ عماد یوسف کو رہا کر دیا گیا۔ عماد یوسف کو شہباز گل کا متنازع بیان نشر کرنے سے متعلق مقدمے میں پولیس نے گرفتار کیا تھا۔ عماد یوسف کو بختر بند گاڑی میں جوڈیشل مجسٹریٹ ملیر کی عدالت لائی۔ عماد یوسف کے وکیل نعیم قریشی نے موقف اختیار کیا کہ عماد یوسف کا پورے معاملے میں کوئی کردار نہیں۔ اسی متن کے ساتھ اسلام آباد میں بھی مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ایک واقعے کی 1 سے زیادہ ایف آئی آر نہیں ہو سکتی، لہٰذا ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 63 کے تحت مقدمہ خارج کیا جائے۔ عدالت نے استدعا منظور کر لی اور عماد یوسف کا نام مقدمے سے خارج کر کے رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ عماد یوسف نے عدالتی حکم پر 1 لاکھ روپے کے ضمانتی بانڈ جمع کرا دیے۔ رہائی کے بعد عماد یوسف نے فتح کا نشان بھی بنایا۔ سندھ ہائی کورٹ نے سوراب گوٹ کے اطراف قبضہ ختم کرانے کا حکم دے دیا۔ ریمارکس دیے کہ اسکیم 33 کو نو گو ایریا بنا دیا گیا۔ 45 روز میں کامیاب آپریشن کرنے کے احکامات دیتی ہے۔ اسکیم 33 نو گو ایریا بن گیا۔ غیر ملکیوں نے پاکستانیوں کی زمین پر قبضہ کر رکھا ہے۔ 45 روز میں اراضی واگزار کرائی جائے۔ سندھ ہائی کورٹ نے اسکیم 33 قبضہ کیس میں سخت ریمارکس دیے۔ جسٹس اظہر رضوی نے ریمارکس دیے کہ سوراب گوٹ سے آگے شہریوں کے پلاٹس پر غیر ملکیوں نے قبضے کر رکھے ہیں۔ شہریوں کو امید ہے کہ ان کے پلاٹس واپس ملیں گے۔ عوام کی زمینوں کی حفاظت کیا ریاست کی ذمہ داری نہیں؟ عدالت نے ڈپٹی کمشنر شرقی کی رپورٹ مسترد کرتے ہوئے ہدایت دی کہ پولیس رینجرز کی معاونت لیں اور 1.5 مہینے میں جگہ خالی کرائیں۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ رہائشی پلاٹس پر پھر کمرشل کام کیا جائے؟ کراچی کے علاقے کورنگی کراسنگ کے قریب شادی ہالز کی جگہ ہوٹلز بنانے کے خلاف کیس میں سندھ ہائی کورٹ نے برہمی کا اظہار کیا۔ ریمارکس دیے غیر قانونی شادی ہالز کو سپریم کورٹ نے مسمار کرنے کا حکم دیا تھا۔ سندھ ہائی کورٹ نے عدالت عظمیٰ کے حکم پر عمل درآمد کرایا۔ عدالت نے درخواست گزار کے وکیل کو استدعا میں تبدیلی کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی۔ بتائیں گے کہ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف مقامات پر بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ 14 اگست سے بلوچستان بھر میں تیز بارشوں کا امکان ہے، جس سے سیلاب کا بھی خطرہ ہے۔ پی ڈی آئی میں بلوچستان نے بھی ہائی الرٹ جاری کر دیا۔ بلوچستان بھر میں مونسون کا موسم اپنے جوبن پر ہے۔ کوئٹہ، جوب، قلات سمیت مختلف شہروں میں ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ 14 اگست سے بلوچستان بھر میں شدید بارشوں کا امکان ہے، جس سے سیلاب کا بھی خطرہ ہے۔ پی ڈی اے میں بلوچستان نے اس حوالے سے ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے۔ بلوچستان میں بارش کا سلسلہ رواں ہفتے جاری رہ سکتا ہے۔ ضلع سیف اللہ، بارکھان، سبی، قلات اور لزبیلا سمیت متعدد علاقوں میں سیلاب کا خدشہ ہے۔ بلوچستان میں گزشتہ اسپیل میں بھی بارشوں اور سیلاب کے نتیجے میں مختلف حادثات میں 176 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ اور کراچی میں گزشتہ روز کی بارش کے بعد موسم مرطوب اور گرم ہے۔ شہر میں آج بھی مختلف مقامات پر تیز بارش کا امکان ہے۔ گزشتہ روز کی بارش کے بعد تباہ شدہ شہر کی حالت مزید خراب ہو گئی۔ گڑھوں میں پانی بھرنے سے ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہو رہی ہے۔ ملیر ندی میں طغیانی سے کورنگی کازوے بھی زیر آب آ گیا۔ کراچی پر مونسون پوری طرح اثر انداز۔ شہر میں مختلف مقامات پر رات گئے ہلکی بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں آج بھی مختلف مقامات پر ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ کراچی میں بارشوں کا موجودہ اسپیل 14 اگست تک جاری رہ سکتا ہے، جبکہ 17 اگست سے بھی بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے۔ کراچی میں گزشتہ روز کی بارش کے بعد صورتحال بدتر ہو چکی ہے۔ شہر میں گلیوں اور سڑکوں پر پانی جمع ہے۔ سڑکوں پر موجود گڑھوں میں پانی بھرنے سے ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہے۔ کراچی کی اندرون علاقہ گلیوں میں بھی صورتحال بدتر ہے۔ گزشتہ اسپیل کی بارشوں کے بعد گلیاں تاحال تباہالی کا شکار ہیں۔ مختلف علاقوں میں سیوریج کا نظام بھی تباہ ہو چکا ہے۔ گلیوں اور سڑکوں پر گٹر کا پانی جمع ہونے سے عوام کو شدید تکالیف کا سامنا ہے۔ کراچی میں بارش کے بعد کورنگی کازوے پر پھر پانی جمع ہونا شروع ہو گیا ہے۔ ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی ہے۔ راستہ بند ہونے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اس وقت وہاں پر صورتحال کیا ہے؟ ہمارے نمائندے صلاح الدین علی اس بارے میں ہمیں رپورٹ کریں گے۔ جی صلاح الدین، بتائیے گا۔
गुज़िश्ता रोज़ जो बारिश हुई है शहर के अंदर मुख्तलिफ इलाकों में, उसके बाद अब एक बार फिर जो है वो काज़वे नदी के अंदर पानी जो है वो आना शुरू हो चुका है। अब से कुछ देर कब पानी आना शुरू हुआ है, और अगर ये एक बार फिर पानी की रफ्तार ज़्यादा तेज़ हो गई, यहाँ पर ज़्यादा पानी आ गया, तो ये काज़वे नदी को एक बार फिर जो है वो बंद कर दिया जाएगा ट्रैफिक के लिए। तो जिसके बाद जो है वो क्या नाम कुरंगी का एक बार फिर राब्ता जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों से मुनक़ता हो जाएगा, और कुरंगी का एक ही वाहिद रास्ता रह जाता है, वो है जाम सादिक का। और इस वक्त मैं कुरंगी काज़वे नदी पर मौजूद हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर पानी आने के बाद सूरत हाल ये है कि यहाँ पर इस वक्त भी जो है वो ट्रैफिक की रवानगी जो है वो काफ़ी मुतासिर हो गई है, और काज़वे नदी के अंदर काफ़ी गड्ढे भी पड़े हुए हैं, जिसके बाइस ट्रैफिक की जो रवानगी है वो काफ़ी स्लो है। इस वक्त काज़वे नदी के अंदर जो है वो पानी आना शुरू हो चुका है, और इसके बाद अगर ये जैसे ही अगर इसकी शिद्दत में इजाफा हो गया या पानी की मिकदार में अगर ज़्यादा पानी आ गया यहाँ पर, तो इसको एक शुक्रिया आपका। हालिया बारिशों ने शहर कायद का तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर मजीद बर्बाद कर दिया। शहराहों पर जगह जगह गढ़े हादसात का बायस बन रहे हैं। नुमाइंदा बोल न्यूज़ कफील अहमद इस वक्त बहादुर शाह जफर रोड पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कफील, क्या सूरत हाल है सड़क की? बारिशें हो भी गई और बारिशें फिर होने जा रही हैं 14 अगस्त तक, लेकिन कराची की जो सड़कें हैं उनको बनाने वाला या उनको सुधारने वाला या उनको बेहतर करने के लिए कोई पॉलिसी नहीं है शहर के अंदर। मैं इस वक्त बहादुर शाह जफर रोड पर हूँ। ये गाड़ियाँ आप देखें, ये रिक्शे देखें, फैमिलीज़ के साथ लोग जा रहे हैं, किस तरह गाड़ियाँ आ रही हैं बल खाते हुए, ख्वाह वो बसें हों या जो है वो कार हो, कोई भी हो, मोटरसाइकिल सवार हो। यहाँ बहुत बुरी हालत के अंदर ये तमाम यहाँ से ट्रैफिक गुजर रहा है, लेकिन कोई इसको बनाने वाला नहीं है। एक ड्राइवर जो यहाँ से गाड़ियाँ रोज़ लेकर जाते हैं, साकिब यहाँ क्या सूरत हाल होती है, क्या ख़वातीन गिर भी जाती हैं? यहाँ पर हम लोग डेली आते जाते हैं, कभी हम लोग का गाड़ियों का क्या मसला होता है, कभी क्या मसला होता है, और यहाँ पर लेडीज़ आते जाते हैं बाइक में, इस लोग को बहुत परेशान होते हैं, वो कभी गिर जाते हैं, कभी क्या होता है, यहाँ पर बहुत बंदों का नुकसान होता है। ये छोटा होता है। ये तमाम सूरत हाल जो है पूरे शहर में है, मतलब कमोबेश ये जो मनाजिर हैं ये कोई नए नहीं है। कम से कम कराची के 70% जो सड़कें हैं वो इसी सूरत हाल से दो चार हैं, लेकिन इंतज़ामिया या एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब कहीं इन सड़कों को पैचअप करते हुए या इनको जो है वो कम से कम कारपेट करते हुए कहीं जो है वो दिखाई नहीं दी इंतज़ामिया। और ये शहरी ये रोज़ मसाइल से शुक्रिया कफील अहमद अपडेट कर रहे थे। कराची में बारिशों के बाद सड़कों की हालत मजीद अबतर है। मज़ार कायद की जानिब जाने वाली सड़क भी टूट फूट का शिकार है। सूरत हाल बता रही हैं हमारी नुमाइंदा मरियम हसन। जी मरियम। के नलकों में पानी आता नहीं है, अलबत्ता सड़कों पर से पानी जाता नहीं है। गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश, जो कि ज़्यादा बारिश नहीं हुई डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, उसके बावजूद एम जिन्ना रोड पर बारिश का पानी तो मौजूद है, लेकिन बारिश के पानी की वजह से सड़क जो है वो टूट फूट का शिकार जो है वो मुकम्मल तौर पर हो चुकी है, जिसके सबब एम जिन्ना रोड से मज़ार कायद की जानिब जाने वाला रास्ता जो है टूट फूट का शिकार है, और ट्रैफिक की रवानगी जो है वो शदीद मुतासिर हो रही है। और शहरी जो है गम गुस्से का इजहार भी करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हुकूमत वक्त की जानिब से ताहाल इकदाम जो है वो नहीं। शुक्रिया आपका। और कराची की ये सूरत हाल है तो जमात इस्लामी ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की बरतरफी का मुतालबा कर दिया है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं सिंध हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन से राह फरार अख्तियार कर रही है। कराची का हर जिला बदतरीन सूरत हाल से दो चार है। शहर में ट्रांसपोर्ट का कोई निज़ाम मौजूद नहीं, सड़कों की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। पीपल्स पार्टी कराची के लोगों से खेल रही है। कल बारिश हुई है और उस बारिश के बाद भी एक मरतबा फिर शहर में गंदगी, गिलाजत, गटर के पानी, कचरा और सड़कों की टूट फूट के नतीजे में लोग बदतरीन सूरत हाल से दो चार हैं। हमारे सियासी एडमिनिस्ट्रेटर हैं जो बज़ो में खुद पीपल्स पार्टी ने उन्हें नाजायज़, गलत, गैर आइनी, गैर कानूनी तरीके से मुकर्रर किया हुआ है, और वो ये ऐलानात करते फिरते हैं कि मैंने शारा फैसल क्लियर कर दी, मैंने यूनिवर्सिटी रोड क्लियर कर दी, मैं रात को यहाँ हूँ, दिन को यहाँ हूँ। लेकिन वो किसी भी आबादी के अंदर इस वक्त जाकर देख लें, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में भी वो पता नहीं कौन सी जगह से आते हैं और कौन सी जगह से चले जाते हैं। कोई ज़िला भी इस वक्त जो है बदतरीन सूरत हाल से खाली नहीं है। सड़कें टूटी हुई हैं और मिनटों का सफ़र घंटों में हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद कोशिश ये की जा रही है कि बजाय इसके कि इस शहर को एक बल्दियाती मुंतखब इदारा मिले, बाज़ पार्टियाँ इस बात की कोशिश कर रही हैं कि किसी भी तरीके से फ़रार का रास्ता इख्तियार करें। MQM ये कर रही है और पीपल्स पार्टी जिस तरह पूरे कराची के लोगों के साथ खेल रही है, इसी तरह से वो अपना काम कर रहे हैं और उनकी किसी चीज़ में जो है कोई फ़र्क नहीं। रुझान में रोदकोही के सैकड़ों सैलाब मुतासिरीन घरों से बेघर होकर इंडस हाईवे रुझान अरबा टब्बा के करीब बेबसी की तस्वीर बने बैठे हैं। ना खैमा, ना राशन, ना पीने का पानी। मुतासिरीन मीडिया के सामने फट पड़े। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ दानिश मजारी से। दानिश, क्या कहना है मुतासिरीन का?
बिल्कुल, रोदकोई के सैलाब की अगर बात की जाए तो रोदकोई के सैलाब ने रुझान में बड़ी सतह पे तबाही मचा दी थी। यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में बस्तियाँ सफ़ा हस्ती से मिट गए थे। इस वक्त अरबी टिब्बा रुझान में मैं मौजूद हूँ। मेरे साथ सैकड़ों मुतासरीन इस वक्त मौजूद हैं जिनको ना खैमे दिए गए, ना राशन दिया गया, ना ही पीने का पानी है। हुकूमत वक्त से वो क्या अपील करते हैं हम उनसे जानते हैं। जी आप हमें बताएँ। असी कोई सिरा वारे से अस त्रे मरते पियूं, भुखी मरते पियूं, ना कोई दाना है, ना कोई अट्टा है, असा गल गयूं, ना कोई तंबू है, असा ही ना राशन है, असा गल गयूं 15 जड़े थी गन पियूं से। जी जैसा कि मुतासरीन के मुताबिक आपने सुना है 15 से 20 दिन हो गए हैं इनको बगैर टेंट के, बगैर छत के यहाँ पे खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने हुकूमत वक्त से यही अपील किया कि इनको वक्त बर वक्त जो है ना इनको खाना दिया जाए, इनको टेंट दिए जाए और पानी मुहैया किया जाए। शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और ना सिर्फ तबाह हाल सड़कें बल्कि बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग से लाहौर के शहरी तड़प उठे। कहते हैं दिन भर काम करके थके हारे घर जाएँ तो बिजली नहीं होती। बच्चे और बूढ़े वालिदैन भी परेशान हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे सुधीर चौधरी। सुधीर जी बिल्कुल, लाहौर में गैर इलानिया लोड शेडिंग अरूज पर है। दिन को काम करके थके हारे जब घर जाते हैं तो बिजली मुयस्सर नहीं होती, कोई पुरसाने हाल भी नहीं। इसी वाले से शहरियों से बात भी करेंगे। भाईजान ये बताएं, सारा दिन काम करके जब घर जाते हैं तो सोने लगते हैं, लाइट चली जाती है, सारी रात लाइट कई दफ़ा नहीं आती, बच्चे भी परेशान होते हैं, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। यही बात है कि पूरा दिन काम करते हैं, गर्मी में इतनी गर्मी होती है इधर भी, जब रात को जाते हैं तो इतनी परेशानी होती है, सो नहीं सकते, कोई समझ ही नहीं आ रही क्या करें। बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है और कभी बच्चे भी परेशान हैं इसी लोड शेडिंग की वजह से। ना बच्चों को सही नींद सुकून से सो सकते हैं, ना खुद पूरा दिन की थकावट से, ना रात को सुकून। बिजली की वजह से तो बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा बिजली की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी है। लेस्को के सिस्टम पर आज सुधीर चौधरी अपडेट कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।